Hi everyone, welcome back. I'm Shilpi and today we are going to start the chapter perimeter and area. So perimeter of a closed figure is just the length of the boundary. A perimeter is the length of the path that encompasses or surrounds a two-dimensional closed figure. तो जो भी boundary की किसी closed figure की length होगी, that is the perimeter. एंड एरिया द रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज्ड फिगर. उस क्लोज्ड फिगर के अंदर जितना भी रीजन ऑक्यूपाइड है दैट इज़ द एरिया ऑफ दैट क्लोज्ड फिगर. सो जस्ट अ रिव्यू, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सो इन फॉर द केस ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द केस ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. So as you know, the perimeter of a rectangle is 2 multiplied by the sum of length and breadth, where L is the length of the rectangle and B, this is the breadth of the rectangle. So this is the perimeter. For the area, it is the product of length and breadth. Now in case of a square, as you know, the square has its all four sides equal. So sari sides, this is A, this is A, this is A and this is A. So therefore the perimeter is 4 times A and the area is A into A, that means A square. Now units, the perimeter can have units like millimeter, centimeter, meter, kilometer, and if it is area then it will be having a part 2, millimeter square, centimeter square, meter square and so on. So like this we will be having the units of area. So now let us discuss some questions. First two questions are already done here because these are the very basic questions. It is find the area of square whose side is 2.1 meter. So here the side of the square is given. This is 2.1 and we know the formula of area of a square. क्या formula होता है? Side का square. Side कितनी है? 2.1. इसका square कर दिया. We got the area of the square. Now then in the second question we have to find the area of rectangle. Find the area of rectangle having length, that means हमें L दे रखा है length and B दे रखा है that is breadth. तो area of rectangle is L into B. L और B की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, we get the value of area of the rectangle. Okay, now coming on to the next question. A marble tile measures this by this. तो ये एक marble tile है, measures this by this means ये उसकी length और breadth दे रखी है. How many tiles will be required to cover a wall of size this by this? तो ये हमें length और breadth दे रखी है wall की. तो पहले तो हम दोनों का area निकाल लेंगे. तो area of a tile क्या होगी? length into breadth, that means 20 into 15 centimeter square. So this is 300 centimeter square. Now area of wall. तो area of wall इसकी length of और breadth suppose हमने capital L और capital B ले ली, ठीक है. तो capital L it is 5 meter. So this is 5 into breadth is 3 meters. So it is 15 meter square. Just to make the unit same, I am converting it into centimeter square. So if I will convert it into centimeter square, as 1 meter has 100 centimeters और square है तो 2 times we have to multiply 100 to convert it into centimeter square. So this will be this much centimeter square. Now we have to find the number of tiles. कितने tiles ये पूरा wall का area cover करेंगी. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो total area है wall का that must be divided by the area of one tile. So therefore number of tiles equals to area of wall upon area of one tile. ये आ गया 1,50,000 divided by 300. तो this is cancel. ये आ गया 500. तो how many tiles are required? 500. So therefore
500 tiles are required. Okay, so now next question. A room is 10 मीटर लॉन्ग, यानी ये उसकी लेंथ दे रखी है, 6 मीटर वाइड, दिस इज द ब्रेथ, एंड 4.2 मीटर हाई, दैट मीन्स दिस इज द हाइट. तो इट हैज़ वन डोर ऑफ दिस बाय दिस, तो ये डोर की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, एंड वन विंडो ऑफ डायमेंशन दिस, विंडो की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है. Find the cost of whitewashing the walls at rupees 2.50 per square meter. अब वाइट वॉशिंग मीन्स हमें क्या करना है, उन वॉल्स पे जो रूम है उसकी वॉल्स पे वाइट वॉश होना पूरा. तो वाइट वॉश अगर करेंगे तो पूरे एरिया पे होगा वाइट वॉश, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एरिया. अब वाइट वॉश हो रहा है तो ऑब्वियसली जो डोर और विंडो है उसके ऊपर तो वाइट वॉश नहीं होगा, वॉल के ऊपर होगा. दैट मीन्स फ्रॉम द एरिया ऑफ द वॉल्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ डोर एंड एरिया ऑफ विंडो. वो एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि डोर और विंडो पे तो वाइट वॉश नहीं होगा. ठीक है, सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का एरिया कितना होता है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट. ओके, ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स. दिस इज़ द फॉर्मूला, और अगर नहीं पता तो आप मैनुअली भी निकाल सकते हो सारी वॉल्स का एड अप करके, यू विल गेट दिस. ओके, नाउ सो दिस इज़ 2 into लेंथ कितनी है रूम की, 10 प्लस ब्रेथ इज़ 6 एंड हाइट इज़ 4.2. So it is 8.4 into 16, that is 134.4 meter square. ये आ गया area of 4 walls. Okay, now we have to find the area of door and the area of window. So area of door, हमें क्या डायमेंशंस दे रखी है डोर के, 2.5 इंटू 1.5, तो ये हो गया 3.75 मीटर स्क्वायर. एंड नाउ एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो के क्या डायमेंशंस दे रखे हैं, 1.5 इंटू 1, दैट मीन्स 1.5 मीटर स्क्वायर. नाउ द एरिया ऑफ वॉल टू बी वाइट वॉश्ड, कितना एरिया वाइट वॉश्ड होगा, जो सारी वॉल्स का एरिया है दैट इज़ 134.4, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है डोर का एरिया 3.75 एंड विंडो का एरिया दैट इज़ 1.5. तो ये हो जाएगा 134.4 माइनस दिस इज़ 5.25, ये आ जाएगा 129.15 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग. नाउ कॉस्ट क्या होगी, एरिया इंटू रेट. जो हमें रेट दे रखा है वो पर स्क्वायर मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए दे रखा है. तो इतने एरिया के लिए क्या कॉस्ट होगी, इस एरिया से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट आ जाएगी. तो एरिया कितना है 129.15 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना दे रखा है हमें 2.50 फॉर 1 मीटर स्क्वायर. तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.50 से. तो after multiplying you will get the value as rupees 322.88. Therefore the cost is rupees 322.88. answer. Okay, moving on to next question. The area of a square ABCD, एक स्क्वायर दे रखा है ABCD, इसका हमें एरिया दे रखा है. सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला यूज़ करके हमें इस स्क्वायर की साइड पता चल जाएगी. तो पहले तो हम इसकी साइड निकाल लेते हैं. सो एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे मैंने फिगर बना लिया एज शोन इन द फिगर. मैं यहाँ लिख देती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर ABCD. ओके, तो क्या होता है ए स्क्वायर
और एरिया ऑलरेडी दे रखा है कितना 64, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, 8 का स्क्वायर है, दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू 8. सो देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. तो हमारे पास ये इसकी साइड आ गई 8 सेंटीमीटर. सो दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, राइट. Now, find the area of a square obtained by joining the midpoints of its sides. यानी कि अब ये midpoints ले लिए मैंने P, Q, R, S और इनके midpoints को join करके इसके अंदर जो ये एक और square बना है, इस square का हमें area find out करना है. So we have to find this area, shaded area. तो अब इसका हाफ कितना हो जाएगा, DR4, ये 4, ये 4, ये 4, है ना, like this. So how can we find the area of the inner square? उसके लिए हमें अंदर वाले स्क्वायर की साइड चाहिए होगी. So we can find the side of this square by applying Pythagoras theorem in one of these triangle. तो ये triangle अगर मैं ले लूँ in triangle PBQ by Pythagoras theorem, तो पाइथागोरस थ्योरम से जो इसकी हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो गया, इनर स्क्वायर की साइड, है ना. तो ये मैंने ले लिया x. ओके, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. तो ये हो गया 16 प्लस 16, दैट इज 32. तो x कितना आ गया 4√2 सेंटीमीटर. क्या हमें साइड पता चल गई. And now we can find the square, now we can find the area of the inner square. So area of inner square is equals to साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी आई है हमारी x 4√2, इसका स्क्वायर, दैट मीन्स 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. या फिर डायरेक्ट हम यहाँ से इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 32 यहाँ पुट कर सकते हैं. तो डायरेक्टली यू कैन से दैट द एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The area of 4 walls of a room is 150 meter square if the length of the room is twice its breadth and the height is 4 meter. Find the area of the floor. तो यहाँ पर लेंथ कितनी दे रखी है, ट्वाइस द ब्रेथ. तो ब्रेथ हमने सपोज बी ही मान लेते हैं इसको. तो लेंथ कितनी है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ. एंड हाइट कितनी दे रखी है, 4 मीटर. Area of 4 walls is given. We have to find the area of the floor. So area of 4 walls का हम फॉर्मूला लगा देंगे. Area of 4 walls is equals to 2 into L plus B into H. और ये हमें कितना दे रखा है, this is given 150. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे. 2 into लेंथ कितना 2B plus breadth B, this is also B. H height is 4 and this is equal to 150. So 2 into 4 we have 8, 2b plus b, this is 3b is equals to 150, और b is equals to 150 upon 3 into 8, ये हो गया 50 upon 8. So this is 25 upon 4. ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई b की, दैट इज ब्रेथ. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर. सो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ कितनी हमें दे रखी है, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ b. तो लेंथ की जगह हम पुट कर देंगे 2b मल्टीप्लाइड बाय b. तो ये हो गया 2 इंटू, अब ब्रेथ हमने कितनी निकाली, 25 अपॉन 4 इंटू 25 अपॉन 4. ये हो गया 2. इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 625 अपॉन 8. फर्दर सॉल्विंग इट वी विल गेट द वैल्यू 78.125 मीटर स्क्वायर. सो देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लोर इज 78.125 meter square. Answer. Next question.
a rectangular room is 5.6 meter into 4.8 meter is to be carpeted with a carpet 80 centimeter wide. ओके तो ये तो हमें रूम के डायमेंशंस दे रखे हैं, लेंथ और ब्रेथ, और कारपेट की हमें ब्रेथ दे रखी है, वाइड, दैट मीन्स दिस इज द ब्रेथ. फाइंड द लेंथ ऑफ द कारपेट रिक्वायर्ड. तो लेंथ हमें फाइंड करना है. तो ऑब्वियसली बात है कि अगर रूम के ऊपर वो कारपेट लग रहा है तो कारपेट का एरिया उस रूम का जो फ्लोर है उसके एरिया के इक्वल होना चाहिए, है ना. दोनों एरिया इक्वल होना चाहिए. तो हम दोनों के एरियाज इक्वल रख देंगे. बाय सॉल्विंग द इक्वेशन वी विल गेट द लेंथ ऑफ द कारपेट. सो लेट द लेंथ ऑफ carpet be L. Okay, so area of room must be equals to area of carpet. Now area of room dimensions हमें दे रखे हैं, it is 5.6 into 4.8 is equals to area of carpet के लिए length L into breadth हमें कितनी दे रखी है. दिस इज़ गिवन इन सेंटीमीटर, नो. सो हम इसे मीटर में अगर चेंज करेंगे तो वी विल डिवाइड इट बाय 100. सो ये आ जाएगा 5.6 इंटू 4.8 इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू 4/5. नाउ लेंथ इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू 4.8 इंटू 5/4. तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे. ये हो जाएगा 1.2 एंड दिस विल बी 5.6 इंटू 1.2 इंटू 5, ये हो जाएगा 6 एंड दिस इज 33.6. सो देयरफॉर लेंथ ऑफ कारपेट इज 33.6 मीटर. आंसर. तो इसी तरह से ये यूज़ होते हैं एरियाज़ और पेरीमीटर के बेस्ड पे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं. यू कैन ट्राई मोर क्वेश्चंस एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ पेरीमीटर एंड एरियाज. सो टेक केयर, बाय बाय.